Now, very good morning to all of you. Welcome to class History by SRB. And now in this class, we are going to solve the question answer of chapter number 3rd. And the name of the chapter is Variations in Shelters. So now let's see what is the first question here. And now question number A is what is given here. Tick the correct option. And the first question is the number of Bhimbetka rock shelter is. The correct option will be option number A, that is 700. Next one, bamboo and wooden houses are found in. The correct option will be option number C, earthquake and prone areas. Question number 3rd is that the earliest form of shelter for man were. Now correct option will be caves, option number B. Next one, question number 4 is that flat roof houses are found in regions of. The correct option will be A, high temperature. Next one, question number 5 is that the volume of radio or television at night should be kept. The correct option will be option number A, low. Now next one, we have to proceed to question number B, that is fill in the blanks. Now in the fill in the blanks, first one is that we live in a society because we are dash on each other for fulfillment of our needs. So you have to write down here dependent. This one you have to write down here dependent. Next one, houses in hilly areas have dash roofs. तो क्या होगा? You have to write here sloping. Where is given? This one, sloping. You have to write down here sloping roofs. Next one, stilt houses protect the dash from the wild animals. Now correct option will be, you have to write down here inhabitants. This one, inhabitants मतलब निवासी, वहाँ के रहने वाले लोग. तो stilt houses protect the inhabitants from wild animals. Now next one, 4 is that you can organize dash pool with your neighbors. You have to write down here car. This one, car. So you can organize carpool with neighbors. Next one, last one is that in cities flats are common because of dash land and many people. You have to write down here limited. Now this one completed. Next we proceed to question number C. State whether true or false. You have to write down here true or false. True false आपको लिखनी है. Now first sentence is huts were earliest form of man-made shelter. तो this is false. यहाँ पर correct option क्या होगा? Caves. But here is given man-made shelter huts. तो यहाँ पर huts नहीं होगा. तो this one is false. You have to write down here false. Next one, number 2 is that Bhimbetka rock shelters are 9,000 years ago. So this one true. So you have to write down here true. Next one, question number 3. The houses in hilly areas have flat roofs. So this one will be false. तो यहाँ पर क्या होगा? False. You have to write down here false. Next one, number 4. We must never help our neighbors in case of emergency. तो this is also false. हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए. बट यहाँ बताया जा रहा है कि हमें कभी नहीं करनी चाहिए. बहुत वेरी बैड. तो दिस वन क्या होगा? False. You have to write down here false. And next one is that most people do not hesitate to throw garbage on street. बिल्कुल सही बात है. बहुत सारे लोग बाहर में गार्बेज फेंक देते हैं ना. तो यहाँ पर क्या होगा? True होगा. तो this one is true. Now next one we have to proceed to question number D and E and map work, map skill and other questions. So first of all we have to complete question number D. So let's see what is the question number 1. तो यहाँ पर देखो D1 में क्या है कि what was the earliest form of shelter. ठीक है, यानी कि earliest form में रहने का जगह क्या था, कैसा था. Now let's see the answer. Now see the answer here कि what was the earliest form of shelter. The answer is that caves were the earliest form of shelters. Question number 2, you can see here what is given here कि what are the walls of huts made of in villages. So what will be the answer? The walls of huts are made of mud. Now next one, D3, why are some houses built with thick walls and flat roofs. Now see the answer. You can write the answer in this way. To keep the houses cool in summer, some houses are built with thick walls and flat roofs. Now next one, question number 4, D4 is that give 2 advantages of high-rise apartments. Now see the answer. I have written point wise. So you can write the answer in this way
कि 2 एडवांटेजेस ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट्स आर, पॉइंट नंबर 1 में आप लिख सकते हो इट टेक्स लिमिटेड एरिया, यह बहुत ही कम जमीन लेता है, कम एरिया को कवर करती है। नेक्स्ट वन, इट इज़ गुड फॉर लार्ज पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पर जनसंख्या पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर भी हाई राइज अपार्टमेंट वहाँ बेनिफिट पहुँचाती है, वहाँ के लिए अच्छी होती है, विशेषता अच्छी एडवांटेज होती है वहाँ बनाने के लिए, जहाँ पर पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर कम लैंड एरिया होती है। बेसिकली क्या है, टाउन में ऐसा देखा जाता है। नाउ डियर चिल्ड्रन, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर E1। तो E1 में व्हाट इज गिवन हियर, क्या दी गई है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हमें किन चीज़ों की जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ सी द आंसर, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ द अर्ली मैन फ्रॉम भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। नाउ नेक्स्ट वन E2, list the changes that occurred in the life of man when he became a food producer. तो see the answer here, answer I have written here point wise, you can write in this way। तो आप भी point wise में लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि man started living a settled life and he started building huts। और जब एक जगह उन लोगों ने रहना शुरू किया तो वहाँ पर रहेंगे कैसे, तो झोपड़ी घर बनाना शुरू किया। तो ये चेंजेज आए थे जब ह्यूमन एक फूड प्रोड्यूसर बना तब। Now next one E3 is that give 3 reasons for regional variation in houses। तो अलग अलग प्लेस में अलग अलग तरह के घर होते हैं ना, तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण इसका। Now see the answer here, land forms, climate and materials available are the 3 reasons for regional variations in houses। Now question number 4 is that what are the responsibilities of a good neighbor। Now see the answer, answer is written here, a good neighbor always be ready to help his neighbor, comma, shares the parking space peacefully and doesn't use noisy equipments at night। Now this is question number E5, what is given here, complete the table below। अब यहाँ देखो टेबल दी गई है, complete the table below, ये जो टेबल यहाँ पर दी गई है यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। अब देखो यहाँ पर बहुत ही क्लीन नहीं दी गई है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज गिवन हियर। अब यहाँ देखो क्या दी गई, लैंड फॉर्म्स, यानी जमीन के टाइप्स, किस तरह की जमीन होती है, हिली, प्लेन्स, कोस्टल एंड आइलैंड्स, अर्थक्वेक एंड टॉन एरियाज। अब यहाँ पूछा क्या गया है, टाइप्स ऑफ रूफ्स, यानी कि सपोज दैट कि लैंड फॉर्म आपका हिली है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर किस तरह का रूफ्स होता है, छत किस तरह के होते हैं, और वहाँ पर किस तरह के मटेरियल का यूज़ होता है घर बनाने में। और ऐसा आपको एग्जाम्पल भी लिखना है कि इस तरह के घर कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, एक स्टेट का नाम यहाँ पर लिखना है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर, यू कैन राइट हियर। तो फर्स्ट में क्या दी गई, हिली। तो हिली एरियाज में कैसा हाउसेज होता है, कैसा रूफ होता है, स्लोपिंग होता है, यानी ढलान वाली होती है। यू हैव टू राइट डाउन हियर स्लोपिंग। आई एम गोइंग टू टेल यू आंसर, यू हैव टू राइट डाउन हियर। तो हिली एरिया में टाइप्स ऑफ रूफ में लिखेंगे स्लोपिंग। मटेरियल यूज की बात है तो मटेरियल यूज में आप लिखेंगे यहाँ पर क्या यूज होता है, सीमेंट लिखेंगे, ब्रिक्स लिखेंगे, वुड लिखेंगे। नेक्स्ट में स्टेट, तो कोई भी एक स्टेट जहाँ पर जो हिली एरिया वाला स्टेट हो जहाँ ऐसा घर बनाया जाता है, यू कैन राइट हियर। क्या लिखेंगे, सपोज बहुत सारे स्टेट है तो कोई भी आपको एक स्टेट का नाम लिखना है, तो यू हैव टू राइट डाउन हियर हिमाचल प्रदेश, आप हिमाचल प्रदेश लिख देंगे। नेक्स्ट में है प्लेन, तो वो लैंडफॉर्म जहाँ पर जो लैंडफॉर्म प्लेन होती है वहाँ का रूफ कैसा होता है, वहाँ का रूफ क्या होगा, फ्लैट होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है फ्लैट रूफ और थिक रूफ, तो फ्लैट एंड थिक। नेक्स्ट में मटेरियल यूज, मटेरियल क्या यूज करते हैं, यू हैव टू राइट डाउन हियर सीमेंट एंड ब्रिक्स। तो स्टेट का नाम बताएंगे तो स्टेट में आप लिखेंगे यहाँ पर कोई भी एक स्टेट, झारखंड लिख देंगे, ठीक है, झारखंड है, बिहार है, दिल्ली है, कोई भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट में है कोस्टल एंड आइलैंड एरिया, तो कोस्टल एंड आइलैंड एरिया में भी वहाँ जो छत होते हैं, रूफ होते हैं, क्या होते हैं, स्लोपिंग होते हैं, स्लोप वाले होते हैं। यू कैन राइट डाउन हियर स्लोपिंग। मटेरियल यूज में क्या लिखेंगे, क्या क्या यूज होता है, आप लिखेंगे यहाँ बैम्बू लिख सकते हैं, वुड, कोकोनट, शाफ्ट, ये सब लिखेंगे। नेक्स्ट में स्टेट की बात करें तो स्टेट में आप लिख सकते हो यहाँ केरला यूज लिख सकते हो। एंड नाउ लास्ट वन, अर्थक्वेक एंड टॉन एरियाज, तो टाइप्स ऑफ रूफ्स क्या होगा, यू कैन राइट डाउन हियर स्लोपिंग। मटेरियल यूज में आप क्या लिखेंगे, मटेरियल यूज में बैम्बू लिख सकते हो, शाफ्ट लिख सकते हो, ठीक है, वुड लिख सकते हो। नेक्स्ट में यूज स्टेट, स्टेट में अंडर स्टेट यू कैन राइट हियर जम्मू एंड कश्मीर। तो दिस वन कंप्लीटेड। नेक्स्ट वी प्रोसीड क्वेश्चन नंबर दैट इज गिवन मैप स्किल। तो हम लोग यहाँ पर अभी प्रोसीड करेंगे मैप स्किल में, व्हाट इज गिवन इन मैप स्किल। नेक्स्ट वन इज दैट मैप स्किल,
ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट लेबल एंड कलर दी फॉलोइंग। अब यहाँ देखो फर्स्ट में दी गई 2 स्टेट्स वेयर हाउस बोट्स आर यूज। अब यहाँ देखो आपकी जो न्यू बुक है, न्यू बुक में यू हैव टू राइट डाउन हियर 1, यहाँ पर 2 दी गई है बट आपको न्यू बुक में 1 ही करनी है। तो आप न्यू बुक के अनुसार आप चलेंगे तो 1 स्टेट वेयर हाउस बोट्स आर यूज, आपको यहाँ पर लिखना है केरला। नेक्स्ट वन नॉट यू हैव टू राइट डाउन, एक्चुअली आपको मैप में दिखानी है, इंडिया का मैप में, पॉलिटिकल मैप में आपको केरला जहाँ पर है उस केरला स्टेट को आपको क्या करनी है, कलर करनी है। मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा लास्ट में, तो वहाँ पर कलर यूज़ कर लेंगे, कलर करेंगे उसको केरला स्टेट को। नेक्स्ट वन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडियन यूनियन, तो यू हैव टू राइट डाउन हियर अंडमान एंड निकोबार, तो आप यह लिखेंगे भी और आपको पॉलिटिकल मैप में क्या करना है, अंडमान निकोबार जहाँ पर है उसको क्या करनी है, कलर करनी है। नेक्स्ट वन इज दैट स्टेट वेयर भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड, तो यू हैव टू, आई एम टेलिंग यू MP, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स है। आपको मैप ऑफ इंडिया में क्या करनी है, जहाँ पर मध्य प्रदेश है उस स्टेट को क्या करनी है, कलर करनी है। नाउ नेक्स्ट वन हिली स्टेट, कोई भी एक हिली स्टेट पहाड़ी वाला जो राज्य होता है उसको आपको फाइंड आउट करनी है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में और उसको क्या करना है, कलर करना है। तो आप कौन सा कलर करेंगे, आप कोई भी ले सकते हो, मैंने एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है लद्दाख, तो यहाँ पर आप लद्दाख लिख सकते हो, ठीक है। तो लद्दाख, और लद्दाख जहाँ पर पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में जहाँ पर लद्दाख का लोकेशन होगा उसको क्या करनी है, यू हैव टू कलर, तो कलर करनी है। नेक्स्ट वन है एंड द लास्ट वन इज दैट वन स्टेट सिचुएटेड अलोंग दी अरेबियन सी, यानी कि अरेबियन सी के सी में जो भी स्टेट आपको टच मिलती है उनमें से कोई भी एक स्टेट को आपको कलर करनी है। तो आप गोवा कर सकते हो, महाराष्ट्र कर सकते हो, केरला कर सकते हो, जो भी हो। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू मैप। यहाँ पर फर्स्ट में क्या थी, 1 स्टेट वेयर हाउस बोट्स आर यूज, तो मैंने बताया था केरला आपको करनी है। नाउ यू कैन सी, देखो ये जो स्टेट है ये केरला है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह से देखो ऑलरेडी कलर यहाँ पर की गई है, तो इसी तरह से आप कोई भी कलर आप यूज़ करके इस स्टेट को, केरला स्टेट को आप कलर कर सकते हो। तो फर्स्ट वन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट में है वन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडियन यूनियन अंडमान एंड निकोबार, तो दिस एरिया इज अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर आप कलर करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट स्टेट वेयर भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड, आपको मध्य प्रदेश दिखानी है, MP, तो आप यहाँ पर ये देखिए आपका MP है मध्य प्रदेश, तो दिस वन यू हैव टू कलर, ये जो MP है ये स्टेट, इस स्टेट को आपको कलर करनी है। नेक्स्ट में दिखाया गया है वन हिली स्टेट, वन हिली स्टेट आप लद्दाख दिखा सकते हो, आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, अंडमान एंड निकोबार, ये देखिए यहाँ पर दिस वन, दिस स्टेट इज लद्दाख, तो इस तरह से आप कलर कर लेंगे। एंड लास्ट वन इज दैट वन स्टेट सिचुएटेड अलोंग दी अरेबियन सी, तो अरेबियन सी के सीरीज में जो स्टेट है अरेबियन सी, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अरेबियन सी, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये अरेबियन सी है ना, तो दिस इज अरेबियन सी। अब अरेबियन सी के साइड में कौन कौन सा स्टेट है, आप यहाँ पर केरला भी इसको पॉइंट आउट कर सकते हो, क्योंकि केरला आपने 1 टाइम कर लिया है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो कर्नाटका है, ये कर्नाटका को भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र भी कलर कर सकते हो, तो यहाँ इसको भी कर सकते हो, कोई भी एनी 1 स्टेट यू कैन कलर, तो महाराष्ट्र या फिर आपका कर्नाटका या फिर केरला, कोई भी स्टेट को आप यहाँ पर एक कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो दिस वन कंप्लीटेड, ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीटेड।